Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My precious friends, welcome to the presence of the living God. मेरे अजीज मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में आपको स्वागत है. My friends, have you seen only defeat all the time in your life? मेरे मित्रों, क्या आपने जीवन में केवल पराजय ही देखा है? Have you seen only loneliness? क्या आपने केवल अकेलापन महसूस किया है? Have you heard only criticism? क्या आपने केवल आलोचना की बातें सुनी है? Have you seen only weakness and sickness and losses coming to you? क्या आपके जीवन में केवल दुर्बलताएं, हानि और नुकसान को आपने सामने किया है? Jesus says, यीशु कहता है, come to me, my child who is broken hearted and who is heavy laden. मेरे पास आओ मेरे बच्चों जो दुखी हैं और जो बहुत ही बोझ से दबे हुए हैं. Come to me and I will give you rest. मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. Today you have come to the Lord. आज आप प्रभु के पास आए हैं. As we pray together, जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, He will remove your burdens वो आपके बोझ को हटाएगा and the Lord will give you rest और प्रभु आपको विश्राम देगा and also restore all that you have lost. और जो कुछ आप खो बैठे हैं उसको पुनर्स्थापित करेगा. Open your heart and cry to Him for help. आपके हृदय खोलकर उसको पुकारे मदद के लिए. स्वर्गीय भाई डॉक्टर DGS दिनाकरन के संदेशों के द्वारा लाखों लोगों ने अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम और करुणा को महसूस किया है. तो आइए उनके द्वारा दिए गए संदेश के एक अंश को सुने. The Bible says in Matthew 7 and verse 11, बाइबल मत्ती के 7 अध्याय 11 वचन में कहती है that God is a good God परमेश्वर भला परमेश्वर है and is giving us good gifts. और वो हमें भले वरदान देता है. This morning we are going to see about one more gift the Lord wants to give us. और आज सुबह एक और भेंट के बारे में हम देखना चाहते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है. The gift of eternal hope. और अनंत आशा का भेंट. The Bible says in John 14:2 and 3. और यूहन्ना 14 अध्याय 2 और 3 वचन में बाइबल कहती है, This is the promise of our Lord Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह की हमारे लिए प्रतिज्ञा है. The Bible says in 1 Corinthians 15:19, पहला कुरिन्थियों 15:19 में बाइबल कहती है, we'll be the most pitiable of all the people if we are going to have hope in Christ only for this world. और परंतु यदि हम सिर्फ संसार ही में भौतिक वस्तुओं के लिए प्रभु यीशु मसीह पर आशा रखते We are हैं, not going to live in this world forever. तो हम हमेशा इस जिंदगी में जीने नहीं जा रहे हैं. Someday we'll have to leave this world. एक दिन तो हमें ये संसार छोड़ना होगा Someday we'll have to go to the other side of life. और हमें जिंदगी के दूसरे पहलू में जाना होगा. It is in this connection our Lord Jesus Christ gives us this wonderful promise. और इस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह हमें एक विशेष प्रतिज्ञा देता है. He has gone before us. वो हमारे आगे आगे गया है. He has gone to heaven. वो स्वर्ग गया है. He says, I am preparing a place for every one of you. और वो कहता है मैं आप सबके लिए एक जगह तैयार करता हूँ. The Lord Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, someday you have to come home. एक दिन आपको घर आना होगा. Someday you'll have to come home. एक दिन आपको घर पहुंचना होगा. I'll wait for you. मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा. The Bible says बाइबल कहती है in 2 Corinthians chapter 5 and verse 1, दूसरा कुरिन्थियों 5:1 में He is going to build a home for us. वो हमारे लिए एक घर बनाने जा रहा है. Not built by human hands. मनुष्य के हाथों से बना हुआ नहीं, God Himself is building it up. परंतु परमेश्वर स्वयं उसे बना रहा है. Oh, someday Dinakaran will come. और एक दिन दिनकरन स्वर्ग में होगा. Someday Mary will come. और एक दिन मैरी आएगी. I must wait for him. और मुझे उसका इंतजार करना Oh, होगा. it's a marvelous thing. और यह तो अद्भुत बात है. What is death?
मृत्यु क्या है? The Bible says बाइबल कहती है in 2 Corinthians chapter 4 and verse 16, और दूसरा कुरिन्थियों 4:16 में the Bible says बाइबल कहती है every one of us have an inward man and an outward man. हम में से हर एक का भीतरी मनुष्य और बाहरी मनुष्य है We call the inward man as a soul, और हम भीतरी मनुष्यत्व को आत्मा the कहते हैं outside man as body. और बाहरी मनुष्यत्व देह है। The Bible says बाइबल कहती है Genesis chapter 2 and verse 7, और उत्पत्ति 2:7 में God made Adam out of the clay of this earth. इस पृथ्वी की मिट्टी से परमेश्वर ने आदम को बनाया। Adam means आदम का मतलब है red clay. और लाल मिट्टी। That is the meaning of that word Adam. आदम का मतलब यही है। God made him from red clay. परमेश्वर ने लाल मिट्टी से उसे बनाया। Then what he did? फिर उसने क्या किया? He breathed the breath of life. और उसने जीवन का श्वास उसमें फूंक दिया। And the Bible says और बाइबल कहती he है became a living soul. वह एक जीवित प्राणी बन गया। The breath of life united the soul and the body. और वो जो जीवन का सांस था वो देह और आत्मा को जोड़ दिया। What happens at the time of death? मृत्यु के समय क्या होता है? The Bible says in Ecclesiastes chapter 12, सबोपदेशक 12 में लिखा है 5 and 7, 5 और 7 में the breath of life is compared to a silver cord. और मानो वो जीवन का जो श्वास है वो मानो सुनहरे धागे के समान है। The silver cord holds the soul, the inward man and the outward man. और वो सुनहरा धागा ऐसा है मानो जो अंदरूनी मनुष्यत्व और बाहरी मनुष्यत्व को जोड़ता है। It is broken और वो टूट जाता है। and man has to return to the eternal home. और वो मनुष्य को अनंत जीवन में जाना होता है। That is what we call as death. और यही कुछ हम मृत्यु को कहते हैं। And for every person it is written और हर एक मनुष्य के लिए ऐसा लिखा when है। he should be born, और कब वो जन्म लेगा, when he should die. कब वो मरेगा। The Bible tells us so in Ecclesiastes chapter 3 and verse 1. सबोपदेशक 3:1 में ऐसा ही लिखा है। In Job chapter 14 and verse 5, अय्यूब 14:5 में लिखा है। the Bible clearly tells us बाइबल स्पष्टता से हमसे कहती है when a man is born, जब मनुष्य जन्म लेता है God knows how many months he will live, और परमेश्वर जानता है कितने महीने वो जिएगा, how many months he will have to live in this world. इस संसार में कितने महीने उसे जीना होगा। It's all decided by him already. और वो पहले से ही पूर्व निर्धारित है। And the Bible says और बाइबल कहती है God has put a boundary. परमेश्वर ने एक सीमा को रखा है Beyond that nobody can go. और उससे आगे कोई नहीं जा सकता। Look at our Lord Jesus Christ when he was in this world. और प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखें जो संसार में जब था, Only 3 people who raised up, और सिर्फ 3 मनुष्यों को उसने पुनर्जीवित किया। Lazarus लाजरस and that widow's son in Nain और नाइम के उस विधवा के बेटे को and the daughter of Jairus. और याईर की बेटी को। No more than that. इससे बढ़कर नहीं। All the other people और बाकी सारे लोग never were allowed to cross their boundary. और उनको अपनी सीमा से कभी पार होने नहीं दिया गया। In the Old Testament also very few people. और पुराने नियम में भी थोड़े से लोग। Only in the case of Ezekiel, और यहेजकेल के सिर्फ हम बाद as में we read in देखते हैं। Isaiah chapter 38, और यशायाह 38 में जैसे हम पढ़ते हैं God extended the boundary by another 15 years. और उसके 15 सालों को परमेश्वर ने बढ़ा दिया। It's amazing. और ये अद्भुत है। God knows परमेश्वर जानता when है we should come, हमें कब आना है, when we should go. हमें कब जाना है। Very rarely I speak about my heavenly experiences. और बहुत कम मैं अपने स्वर्गीय अनुभवों को बांटता हूँ। But you must know there are heavenly experiences. परंतु आपको जानना है कि स्वर्गीय अनुभव हैं। Christian life is not just going to the church, come back and live as you like, and then go back to the church and confess your sins. No. और मसीही जीवन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम चर्च में जाएं फिर घर वापस चले जाएं फिर चर्च में जाके पापों का अंगीकार करें। नहीं, Certainly not. नहीं, निश्चित नहीं। The Christian life is walking with God. और मसीही जीवन है परमेश्वर के साथ चलना। Genesis 5:24 says, उत्पत्ति 5:24 में लिखा Enoch है walked with God. हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। Genesis 6:9 says, और उत्पत्ति 6:9 में लिखा Noah है walked with God. नूह परमेश्वर के साथ चला। Exodus 33:11 says, निर्गमन 33:11 में लिखा है। Numbers 12:8 says, गिनती 12:8 में लिखा है। Numbers 7:89 says, गिनती 7:89 में लिखा है। Moses walked with God. मूसा परमेश्वर के साथ साथ चलता था। James chapter 2:23 says, याकूब 2:23 में लिखा है God called Abraham as his friend and walked with him. और परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा और उसके साथ चला। Acts 13:22 says, और प्रेरितों के काम 13:22 में लिखा है God says, David is a man after my own heart. दाऊद मेरे हृदय के अनुसार पाया जाने वाला एक व्यक्ति है। He walked with him. वो परमेश्वर के साथ चला। He advised him. उसने उसको सलाह दी। That is the life that God wants to give you and me. और आपको और मुझको वैसा ही जीवन वो देना The चाहता है। Bible says बाइबल कहती है in 2 Corinthians chapter
chapter 12 and verses 1 to 4. और दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय 1 से 4 वचन में, When Paul was in this world, जब पौलुस इस संसार में था, when he was praying, जब वो प्रार्थना करता the था, Holy Spirit took him to the heavens. और पवित्र आत्मा उसे स्वर्ग ले गया, He says, I went to the third heaven. और उसने कहा मैं तीसरे आसमान तक उठा लिया गया, What I heard is beyond my comprehension. और मैंने जो सुना वो मेरी समझ से परे है। The Bible says बाइबल कहती है in Revelation chapter 4 verses 1 and 2, और प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 और 2 में लिखा है, John the divine, the apostle, was in great sorrow, और यूहन्ना जो परमेश्वर का प्रिय था वो बड़े दुख में था, and he heard the voice of God. उसने परमेश्वर की वाणी को सुना, The voice said, और उस वाणी ने कहा, John, यूहन्ना come here. ऊपर आजा। The Bible says बाइबल कहती the है Holy Spirit came upon him. पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया, He was in the Spirit, वो आत्मा में था, and the Spirit took him to heaven. और पवित्र आत्मा उसे स्वर्ग ले गया, There he saw the Almighty God in his throne. और उसने परम प्रधान को अपने सिंहासन He पर बैठे could देखा। not describe the beauty of the Almighty God. उस सर्वशक्तिमान की सुंदरता का बखान वो न कर सका, Oh, he looked like the sardius stone. और वो तो मानो सरदिस के पत्थर के समान दिखता है, Oh, he could see the Almighty God. और वो सर्वशक्तिमान को देख सका। The Bible says in Revelation 5:11, और प्रकाशित वाक्य 5:11 में लिखा he है, saw the millions of angels surrounding the throne of God. उसने लाखों लाखों स्वर्गदूतों को देखा जो उसके सिंहासन के चारों ओर थे। My dear brothers and मेरे sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, if you read Ezekiel 1:26, यदि यहेजकेल 1:26 को आप पढ़ते Ezekiel हैं, chapter 10 and verse 1, यहेजकेल 10:1 को पढ़ते हैं, also Isaiah chapter 6 1 to 3, यशायाह 6:1 से 3, all these wonderful experiences are given to the people of God. और ये सारे अनुभव परमेश्वर के लोगों को दिए जाते हैं। The Bible talks about the 9 gifts of the Holy Spirit. बाइबल 9 पवित्र आत्मा के वरदानों के बयान करती 1 है। Corinthians chapter 12 8 to 10. पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 8 से 10 तक। If you have the gift of the word of knowledge and wisdom, और यदि आपको परमेश्वर की आत्मा का बुद्धि और ज्ञान का वरदान the है, Holy Spirit will come. पवित्र आत्मा आएगा, He will take you to heaven. आपको स्वर्ग ले जाएगा, You can talk to God. आप परमेश्वर से बातें कर You सकते can हैं, talk to the Lord Jesus Christ. आप यीशु मसीह से बातें कर सकते हैं। When you have an important decision to make, जब आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है, oh, He will take you there. वो आपको ऊपर ले जाएगा। It's amazing. यह बड़ा अद्भुत है। The Christian life is a supernatural life. मसीही जीवन अलौकिक जीवन The है, spiritual life is a supernatural life. आत्मिक जीवन अलौकिक जीवन है। None of you should be discouraged. आप में से किसी को निराश न होना None of चाहिए, you should feel inferior. और आप में से किसी को भी तुच्छ नहीं महसूस No. करना चाहिए। नहीं, We are a supernatural people. हम अलौकिक लोग हैं, Not because we are something, और इसलिए नहीं कि हम कुछ हैं, but the Holy Spirit who comes and possesses us, He is a supernatural. परंतु वह पवित्र आत्मा जो हमारे भीतर आता है वह अलौकिक है। Once I was very sick unto death. एक बार मैं मृत्यु तक पहुंच गया, इतना बीमार था, Oh, I didn't know what to do. मैं नहीं जानता था क्या करूं, I was just lying there. और मैं वहां पड़ा हुआ था। 4 of my friends came and prayed for me. 4 मेरे मित्र आकर मेरे लिए प्रार्थना की, They cried and cried. वे रोने और रोने लगे। That is why you have friends in this world. और इसीलिए आपको मित्रों की आवश्यकता है। They संसार cried में। out to God. वे परमेश्वर के सम्मुख We पुकारते will हैं, not let our brother go. हम अपने भाई को मरने नहीं देंगे। And the Holy Spirit came और पवित्र आत्मा आया and lifted up my spirit. और मेरी आत्मा को उठा लिया, And I went to heaven. और मैं स्वर्ग चला गया। No, it's marvelous. और ये तो अद्भुत है। As your spirit goes up, और जैसे आपकी आत्मा ऊपर उठती है, you come across the region of clouds. और आप बादलों को देख सकते हैं, Then you come across the planets. और फिर आप आकाश मंडल को देख सकते हैं, Above them the stars. और उसके ऊपर तारों These को, little stars whom you see, they are so big like mountains. और ये छोटे से तारे जो यहाँ से आंखों से दिखते हैं वो ऊपर में मानो पर्वतों के समान है। Then comes heaven, और फिर स्वर्ग आ जाता है, full of light. और वो प्रकाश से भरा हुआ। In heaven there are 3 places. और स्वर्ग में 3 स्थान हैं। The first place has billions and billions of God's blood-washed children of God. और वहां पर आकाश में एक भाग में करोड़ों करोड़ों प्रभु यीशु के लहू से धोए हुए लोग हैं। People like the man, the thief on the cross who at the last moment cried out to God for forgiveness. और उस डाकू ने जो क्रूस पे चढ़ा हुआ अंतिम क्षण में प्रभु यीशु से प्रार्थना करने लगा था। Luke chapter 23, 42 and 43. और लूका 23 अध्याय 42 और 43 वचन में He लिखा said, है, Lord Jesus, remember me when you come in your kingdom. उसने कहा प्रभु यीशु मुझे स्मरण करना जब तू अपने राज्य में आए। He was a robber, और वो तो डाकू a था, dacoit, और वो एक डाकू a था, murderer, हत्यारा a था, thief. चोर था।
But Jesus said, परंतु यीशु ने कहा, why when I come in my kingdom? और मैं क्यों अपने जब राज्य में आऊंगा? Today you'll be in paradise. आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। Oh, he took him to heaven. और वह उसे स्वर्ग लेके गया। You see such kinds of people in crores and crores and crores. और उनको हम करोड़ों करोड़ों में देखते हैं। And it looks exactly like the world. और वो संसार के जैसा ही वहाँ दिखता है। You see mountains. वहाँ पहाड़ों को आप देख सकते You हैं। see the waterfalls. और वहाँ पर आप झरनों को So देख these सकते हैं। people find it very, very convenient. और वहाँ पर लोग बड़ा सुविधाजनक पाते Then हैं। comes the second heaven. और फिर दूसरा आकाश स्वर्ग आ If you जाता read है। Malachi chapter 3 and the last words, और यदि मलाकी के तीसरे अध्याय The अंतिम Bible वचन को says, पढ़ेंगे, बाइबल कहती in है, that day, उस दिन you will see the difference between a man who serves me and a man who does not serve me. आप उस फर्क को देखेंगे उस मनुष्य में जो मेरी सेवा करता और वह जो मेरी सेवा नहीं करता। Here you find the people who served God, और वहाँ आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। people who have done something for God, उन्होंने जिन्होंने परमेश्वर के लिए कुछ किया, something in the church of God, परमेश्वर की कलीसिया में कुछ किया, people who died for the church of God. जो परमेश्वर की चर्च के लिए कुर्बान हो गए। You see their souls over there. आप उनकी आत्माओं को वहाँ देखेंगे। Then you go to the third heaven. फिर आप तीसरे आसमान में जाते Oh, हैं। the glory and brightness of God, impossible to see. और परमेश्वर के तेजो में प्रकाश को जो असंभव है आप आंखों से देख सकें। Oh, it's a different, totally different place. और यह तो एक बिल्कुल भिन्न स्थान है। One side you see the old time prophets and saints. और आप एक तरफ तो देखते हैं पुराने नियम के संतों और महान पुरुषों को, Abraham, अब्राहम, Daniel, दानियल, Samuel, शामुएल, David, दाऊद, Elijah, एलिया, Elisha, एलिशा, Moses. मूसा। Oh, it's marvelous. यह तो अद्भुत है। On the other side, दूसरी तरफ you see the 12 apostles 12 प्रेरितों को देखते हैं and the people who sacrificed their life for God. और उन लोगों ने जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए बलिदान कर दिया। Sadhu Sundar Singh. साधु सुंदर सिंह, Oh, Hudson Taylor. हडसन टेलर, Oh, marvelous people. ओ अद्भुत लोग। And the Lord Jesus Christ walks amongst them. और प्रभु यीशु उनके बीच में चलता है। When we finish our race here, जब हम अपनी दौड़ को यहाँ समाप्त करेंगे, Jesus Christ will come and take us there. प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें उस स्थान में ले जाएगा We'll be with him forever. और हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। Encourage yourself. अपने आप को प्रोत्साहित कर लें। The more we hear about these things, और जितना अधिक हम इन बातों के विषय सुनते, let us draw nearer and nearer and nearer. उसके और निकट और निकट और निकट आते जाएं। My friend, I'm ready to pray for you right now. मेरे मित्रों, मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूँ। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, पिता, give your children grace to leave all the bad habits today. तेरे बच्चों को अनुग्रह दे कि तमाम बुरी आदतों को वो छोड़ दे। Let every evil thought, evil lust, evil deed, and guilt leave their spirits right now in Jesus' name. यीशु के नाम में उनके मनों से हर एक बुरा विचार, बुरी बातें, बुरी क्रियाएं निकल जाएं। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, come upon your children. अपने बच्चों के ऊपर आ जा। Let your Holy Spirit deliver them right now, Father, पिता, पवित्र आत्मा अभी उनको छुटकारा दे and give them peace और उनको शांति प्रदान करें and give them a new heart. और एक नया हृदय उनको दे। Lord, let them be transformed into the image of Jesus. प्रभु यीशु के स्वरूप में वो बदले जाएं। And Master, और मालिक, give them tremendous wisdom उनको बहुतायत का ज्ञान दे and raise them to great heights, Lord. और बड़े बड़े स्तरों में उनको उठाएं। Let them prosper in their studies, उनके पढ़ाई में वो संपन्न हो जाएं, prosper in their jobs, नौकरियों में संपन्न हो जाएं, and prosper in their family life, उनके पारिवारिक जीवन में वो अनुग्रह पाए, prosper in their business. उनके व्यवसाय में वो संपन्न हो I जाए। put these 4 blessings upon each one in Jesus' name. इन चारों आशीषों को प्रत्येक के ऊपर यीशु के नाम में मैं डालता हूँ। I put these blessings upon each one who needs them, Lord. इन आशीषों को उन सबों पर डालता हूँ जिनको इसकी जरूरत है। Confirm it, Lord. और उसके द्वारा प्रभु Honor your children. तेरे बच्चों को असम्मान कर, Raise them to great heights. उनको बड़े बड़े स्थानों में उठाएं। Father, पिता, heal everyone who is sick, Lord. हर एक जो बीमार है उनको चंगाई दे। Let your Holy Spirit come upon them. तेरा पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए। Let every evil power leave in Jesus' name. यीशु के नाम में हर एक दुष्ट आत्माएं निकल जाए। Let this day be a very blessed day. ये दिन बहुत ही आशीष का दिन हो जाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते। Amen. आमीन। My friend,
मेरे मित्रों, please receive God's blessings right now अभी परमेश्वर के आशीषों को आप प्राप्त करें and write to us all your needs. और आपकी जरूरतों को हमें लिखें। I'll pray for you and write back to you what the Holy Spirit guides me to say to you. और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके चिट्ठियों का जवाब दूंगा। Please don't forget to write your full address, your telephone number and email ID also, if you have it. आप अपने पूरा पता लिखना ना भूलें और आप अपने टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी भी लिखें अगर आपके पास उपलब्ध है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम कलावती मुखिया, हम कोलकाता से बोल रही हूँ। हम रहने वाले दार्जिलिंग का हूँ। 2006 में हम लोग का पेड़ टावर हुआ। हम लोग का पेड़ टावर में हम लोग जिस दिन हम लोग आया था पेड़ टावर में, उस दिन ओपनिंग था। उस समय में हम लोग का भाई पॉल दिनकर आया था। मेरा बेटी 2005 में फेल हो गया था 10 में, क्लास 10 में। तब उसका निराशा हताशा लेके हम लोग का पेड़ टावर में आया था। तब उस समय में हम लोग का पेड़ टावर 2006 का 22 तारीख खुला था। उस समय में मेरा बेटी का हाथ रख के प्रार्थना किया था। तब जाके वो इतना पढ़ा, इतना बड़ा न ट्यूशन किया, न उसका स्कूली था, उसका फेल ही तो हो गया था। तब उस समय में मेरा बेटी का भी फिर वो पढ़ते गया, प्रार्थना वो उसका एग्ज़ाम में गया। एग्ज़ाम में जाने का समय उसका फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद है। वही बेटी क्लास 12 में पढ़ के वो होटल मैनेजमेंट किया। होटल मैनेजमेंट करने का बाद में वो अभी होटल मैनेजमेंट बाद के 3 साल बाद में फिर वो नौकरी मिला। अभी इंदौर में है, वो अच्छा से काम कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरा 2 ही बेटी यंग पार्टनर है। दोनों बेटी जो इंदौर में जो काम कर रहा है वो भी यंग पार्टनर है। छोटी बेटी वो भी यंग पार्टनर है। दोनों आशीष दिया परमेश्वर ने।